पढ़ लो। मेरा अल्टीमेट एम यही है, तुम लोग किस तरह से बैठाना पढ़ने के लिए, किसी तरह से बैठ जाओ बस। शुरू के 5 मिनट किसी का मन नहीं करता, मुझे अपना 10th याद है यार, नहीं मन करता था बिल्कुल, किसी ना किसी बहाने बाहर आ जाना, और घर में गेस्ट आ गए तो बिल्कुल ही मन नहीं करता था टेबल पे बैठने का। ठीक है, तो ये मुझे पता है मुश्किल होता है, तो मैं आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू। टीवी चला के बैठ जाओ, एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं ना, फिर मन करना शुरू कर देता है, फिर कहते चल यार एक और देख लेता हूँ, एक और देख लेता हूँ, चल एक और देख लेता हूँ। ऐसे होती पढ़ाई। ओके, राइट, okay guys, let's start. So we are now doing the second part of this chapter, and we learn the second method. So this is chapter 3 of maths, class 10th. And what is the name of the chapter? Linear equation in two variables. So far we have seen, let us say, elimination method. Let's say I have two equations. One is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. And second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now this is the standard form of equation. Acha, just that reminds me, Sarthak and Maitri, I think तुम लोगों का फीस यार अब तक नहीं आया, कुछ something wrong, or maybe I missed it. If you have already submitted, send me a screenshot of this. Maitri, can you hear me, Maitri? Yes, sir. Or Sarthak, I think you're the only two people left. There seems to be some issue. Yeah, please resolve it with your parents. I don't like bringing up this issue of fees time and again. Okay, Sarthak. Yes, sir. It's not a healthy sign. It's not a good sign. If we have to bring up this issue, then our relationship is not very healthy. Something is missing. You're not finding value in CCL. So if that is the case, you please tell me. But I don't like bringing up this issue of fee time and again. Okay, I hope that is understood, Maitri and Sarthak. Yes, sir. Maitri. Yes, sir. If I am sincere about your studies, then some kind of sincerity I expect from you guys also. Okay, so one method I have is I eliminate. So ये जैसे ये सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज में तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसमें करना नहीं है ना, तुम्हें इसको कहीं प्रूफ करना है. just see what I'm doing. So what I'll do is I'll say okay, in this, from this only I'll take you further. I'll say okay, a1x is equal to minus b1y minus c1, और x is equal to minus b1y minus c1 upon a1, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा x की. तो मेरा ये जो पूरी इक्वेशन है, इट विल बी लेफ्ट इन ओनली वन वेरिएबल एंड ये सॉल्व हो जाएगी. देखने में ऐसे भयंकर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट अस लुक एट, सर ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने गलत लिख दिया ऊपर. दिस इज नॉट एलिमिनेशन. एलिमिनेशन तो अब मैं सिखाऊंगा, ये सब्स्टिट्यूशन है. ओके, now let's talk about elimination. एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, ये दिस इज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2. Okay, so I have a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and then a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. आज इतना तो तुम लोगों को पता ही है कि अगर मेरी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल रह जाता है तो उसकी वैल्यू निकल जाती है. सपोज करो आई हैव 5x minus 7 is equal to 0, x is equal to 7/5 आ जाएगा, और मेरे पास आ गया 5x minus 7 is equal to 8x, तब भी निकल जाएगा. ये सब चीज ये हो जाएगा, बस मेरे को एक वेरिएबल चाहिए इक्वेशन. मैं क्या कर रहा हूं,
I will multiply equation 1 with either A2 or B2. So let me take B2 and multiply equation 2 with B1. क्या होगा देखना, इसको B2 से और इसको B1 से मल्टीप्लाई करो. It is allowed if I am doing both the sides multiply with the same number, it is allowed to do. Okay, कार्तिक सरोई, it is allowed to do this. अगर दोनों पूरी इक्वेशन को करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. ओके, सो नाउ आई हैव B1 A1 सॉरी B2 A1 X plus B2 B1 Y plus C1 B2 is equal to 0. And this is my equation number 1 dash, and इसको B1 से किया, so this is B1 A2 X plus B1 B2 Y plus C1 B2 is equal to 0. Now what will I do? Next step I'll do. This was step 1. Step 1 में तो मैंने दोस्तों ये किया था step 1. Step 2 में मैं क्या करूंगा? I will subtract equation 2 dash from equation 1 dash. Subtract करूंगा. Minus 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 minus. ये तो कैंसिल आउट हो गया. अब मेरे पास बचा x B2 A1 minus B1 A2 minus C1 B2 no plus C1 B2 minus C1 B1 is equal to 0. So my x is equal to इसको B1 से किया था मैंने मल्टीप्लाई, ये C2 है. x is equal to C1 B1 C1 B2 minus, give me a moment please. C1 को किया था B2 से, तो ये C1 B2 है, और इसको किया था C2 B1. ठीक है, तो C माइनस, तो दिस C1 B2 एंड C2 B1. अपना बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं तुम लोगों ने, बस मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ये आगे जाके काम आएगी हमें. अब बस कुछ नहीं है, बस ये समझ लो कि सर ऐसे सिखा रहे, ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे. C2 B1, इसकी मैं फोटो खींच के रखूंगा, तुम लोगों को बताऊंगा जब मैं तुम्हें क्रॉस मल्टीपल वाला मेथड दिखाऊंगा, तब इसी चीज पे वापस लेके आऊंगा. माइनस C1 B2 अपॉन B2 A1 माइनस B1 A2. ये x की वैल्यू आ जाएगी. और ऐसे ही y की वैल्यू निकालने के लिए इसको A2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको B1 से, और x को आउट कर दूंगा. यानी what I have done is I have eliminated y and I am left with x. Once I get the value of x की वैल्यू वापस रख दूंगा. ठीक है, ये सारा का सारा इतनी बड़ी महाभारत देख के घबराना नहीं. अभी हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ, एंड देन यू विल सी कि इट इज वेरी इजी. इट्स very easy. Elimination happens to be my favorite method also. Okay, बट इसको याद रखेंगे, मैं दोबारा वापस जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, देन यू विल रिकॉल इट. Yesterday we had done a question. Yesterday, जो एज वाला फादर और सन की एज, उसी को चलो अगली को करें. उसको क्या करना, दोबारा अगली इक्वेशन करते हैं. इक्वेशन में आपसे बनवाऊंगा, उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा. बट ग्राफिकल वाला घर पे करना है आप लोगों ने बैठ के.
Okay, as I'm just presenting the questions. Hmm. Okay. यस ओके, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। भव्य एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। Yes, sir. हाँ क्वेश्चन The नंबर 2 question पढ़ दो number एक बार। 2. हाँ The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later हाँ later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300. ओके Represent this situation algebraically and geometrically. ओके, तो जियोमेट्रिकली तो अभी छोड़ देते, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो गाइस सब यू कैन बैट एज्यूम द है बॉल्स टू बैट को y मान लो, बॉल को x मान, या बैट को x मान लो, बैट को x मान लो, बॉल को y मान लो। मेरे को इक्वेशन बना के दिखाओ जल्दी, एंड वंस यू आर रेडी टेल मी, आई विल आस्क इट, चैट बॉक्स में इकट्ठे डाल देना। आई डोंट थिंक यू नीड इवन पेन एंड पेपर फॉर दिस। क्या दिखाओ जल्दी से मेरे को करके। अब मेरे को आपसे ही कराना पड़ेगा ये, नहीं तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। So first question is done. फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना, सेकंड क्वेश्चन अचिंता। अचिंता बहुत डिस्टरबेंस आ रहा तेरे माइक में भाई, ब्लूटूथ ले ले, दैट इज द बेस्ट। ब्लूटूथ कभी जैक जूक की टेंशन नहीं आती। सर अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। हाँ नंबर 2 का मेरे को बस इक्वेशन बना के दिखा दो, सॉल्यूशन तो बहुत इजी कर लेंगे। बहुत इजी चैप्टर है यार ये, तुम लोग थोड़ा सा मन लगा लो, चुटकियों में हो जाएगा। Okay, I hope I think the people must be now ready with the. Okay, all those who have written this thing, please enter the answer, both the equations. रवि लिखो भाई, आंसर लिखो, जिनको नहीं आता आईडी के लिख दो, कोई टेंशन नहीं, पर टाइम अपना टाइम प्रेशर है क्लास के अंदर। प्रथम नहीं है ना क्लास में आज, ये एक्स्ट्रा एंट्री किसकी हो रखी है? डबल है, प्रथम है नहीं। अच्छा ठीक है, लिखो जिसको नहीं आता। हाँ रवि कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, तुम बस ईमानदारी रखो अपनी तरफ से बना के। Okay. Yes. Okay. I can see the answers. Right, it is so easy. Question number 2. Let cost of a bat is rupees X and cost of a ball is rupees Y. Therefore, 3X plus 6Y is 1300. इक्वेशन नंबर 1। रवि समझ गया? अभी दूसरी वाली बना लेगा रवि अपने से अभी? सर कर रहा हूँ अभी जस्ट वेट। अब समझ गया? यस।
हाँ ओके, राजवर्धन दोनों डाल दी ना, ऊपर पहली वाली भी डाली कि नहीं? हाँ सर दोनों डाल कोशिश दें। तो कोशिश तो क्या करो, अब सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। अब करना एलिमिनेशन मेथड से। Sir, am I audible? या ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Sir, पहले हमने दो इक्वेशन बना ली. 3x plus 6y is equal to 3900. यस, 3x plus 6y equal to 13 and second equation is X plus 3y, x plus 3y is equal to 1300. दूसरा भी 1300 है क्या? सर पहला वाला 3900 पहला 3900 है, सेकंड वाला 1300 है. ओके 3900 एंड 1300। अच्छा यहाँ पे लगे हाथों ना, तो मैं वो चीज भी सिखा दूं मैं कि इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, सही आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, नहीं आएंगे, वो भी सिखा देता हूँ एक बार। Sir, may क्या I tell the value of x and y now? अभी रुक जा, इधर साथ इकट्ठे सर सोचते आपने हैं। बता दिया था वो कल, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। हाँ तो इसका यू गाइस आर गेटिंग दिस थिंग, वो मिल रहा है आपको इसका? इसमें आ रही है वैल्यू, आ रही है डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं? हाँ आ रही है, Yes, डिस्टिंक्ट वैल्यू आ sir. जाएंगी। यस सर। ओके, जिनको नहीं आ रहा वेट करो गाइस। ओके प्लीज पोस्ट द आंसर, ऑल दोज हु गॉट द आंसर। All those who got the answer, please write the answer. Okay, guys, elimination method. सर सर हाँ जी। सर शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। ओके थैंक यू, मुझे याद दिला दे करो यार, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वीडियो में वही था। ओके सो लेट्स यूज एलिमिनेशन मेथड। सो व्हाट आई सेड, एलिमिनेशन मेथड के लिए इसको एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, डिसाइड कर लो किसको एलिमिनेट करना है। मुझे लग रहा है अगर 2 से इसको तो 2 से करने की जरूरत नहीं, ओनली 2 से इसको कर देता हूं, खाली 2 से इसको, तो एलिमिनेट दोनों 6y हो जाएंगे, मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, अब 3 तो है ही मेरे पास, मुझे 6 बनाना है, बाय 2। सो आई विल गेट 2x plus 6y is equal to 2600, and this, let's call this equation 2 dash. Next step 1 तो था मल्टीप्लिकेशन का, स्टेप 1 है मल्टीप्लिकेशन, स्टेप 2 होता है सब्ट्रैक्शन का। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 dash from 1, इक्वेशन 1। हेलो पंकज जी, प्रथम कहाँ है? मैथ्स का चैप्टर कर रहे हैं। अरे यार देखो आप लोग इतना कितना ढीला ले, मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं बीच क्लास के बीच में फोन किए जा रहा हूँ कि यार प्रथम ज्वाइन करे ज्वाइन करे। नहीं क्लास का टाइम तो नॉर्मली 4 to 5 है रोजाना, वो तो कभी कभी मेरे को चेंज करना पड़ता है। नॉर्मल टाइमिंग्स का मैसेज सुबह ही भेज दिया था मैंने। आप उठा दिए इनको, हाँ इनको बोला मुंह पे पानी मारेंगे और थोड़ा ज्वाइन करेंगे क्लास। 5 बजे का मैसेज थोड़ी दिया था मैंने, नॉर्मल टाइमिंग्स का मैसेज दिया था यार, इसमें कोई कंफ्यूजन तो सर नहीं उसने था? yesterday किसी और दिन का देख लिया होगा। है सर उसने yesterday या किसी और दिन का देख लिया होगा।
हाँ, बट आई होप नहीं, मेरी तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। नो सर। ठीक है, ओके गाइस, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब लिख लेते हैं, लिखने में कोई बुराई नहीं, लिख लो। 3x प्लस 6y इजकल टू 3900। एग्जाम में पता क्या होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहले अंतरिक्ष की तो बहुत आदत थी, और रवि की देखी मैंने, प्रथम की देखी, बहुत स्टूडेंट्स की देखी, ये ऐसे कर देते, डायरेक्टली शॉर्टकट मारते। तुम मेरी बात का भरोसा रखो, फाइनल एग्जाम में इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर, अगर आप ये शॉर्टकट की ट्रिक अपनाओगे ना तो गलती होने की चांस बहुत है, और 1 मार्क जाने का मतलब है 4 मार्क्स गए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज शॉर्टकट मत मारना, एग्जाम में पूरे स्टेप्स कंप्लीट करना। ओके, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 2600। ओके, सात्विक, रवि, भव्य, यहां तक समझ में आया? कोई टेंशन तो नहीं? माइनस सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस सबके साइन चेंज कर दूंगा, दिस विल बी x यस एंड दिस विल कट कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 1300। हमारा पहला आंसर तो आ भी गया, द कॉस्ट ऑफ द बैट इज रुपीज 1300। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर जो मेरे को सबसे हल्की लगती है, सबसे हल्की ये लग रही है यार, इसमें x को कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा आ जाएगा। नाउ आई विल से स्टेप 3। तीसरे स्टेप में आपको वैल्यू एक सर की आई हैव अ दूसरे कंफ्यूजन। या गो अहेड। सर अगर x का वैल्यू 1300 होगा तो 3y का 0 नहीं हो जाएगा? क्यों? हाँ हो जाएगा, x हो प्लस सकता है, 3। हो जाएगा, हो सकता है, इट इज पॉसिबल, y कैन बी 0, y कैन बी 0। okay ओके so सर। let's put the value. So put the value of x in 13, x, so x plus 3y is equal to 1300, 1300 plus 3y is equal to 1300, 3y is equal to 0, y is equal to 0। बॉल उनको फ्री में मिल रही है, बॉल उनको फ्री में मिल रही है, फिर भी मैं एनसीईआरटी से आंसर चेक करता हूं इसका। हाँ भाई प्रथम, गुड इवनिंग। Sir, ball wala, can you explain again? हाँ, मैंने गुड x की इवनिंग वैल्यू सर। निकाली, निकाल के इसमें रख दी सेकंड वाली इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ सार्थक, देखा तो 1300 यहाँ लिख दिया, बस 1300 को उधर ले जाऊंगा तो 1300 माइनस 1300 जीरो हो जाएगा, तो बॉल की वैल्यू 0। ऐसा पॉसिबल है कि उसको बॉल फ्री में मिलती हो, बट फिर भी मैं एनसीईआरटी से एक बार कंफर्म कर रहा हूँ कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है। हमारी ये इक्वेशन 3.1, अच्छा सोल्यूशन नहीं दिया इसने, इसका आंसर भी नहीं दिया होगा, बट हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं 3.1 का। नहीं, आंसर नहीं दिया इसने, बट ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो ये भी इक्वेशन वेरीफाई हो रही है और ये भी इक्वेशन वेरीफाई हो रही है, दोनों इक्वेशन वेरीफाई। ठीक है गाइस, अगर कोई आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो जाए तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ अगला क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस कुछ आया? अचिंत्य हो जाएगा अगला क्वेश्चन? अचिंत्य, राजवर्धन, भव्या, कार्तिक? Yes, sir. यस हाँ सर। सर हो हो जाए। जाएगा। मैत्री, मैत्री हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन मैत्री, तो ये थोड़ा Yes, sir. कॉन्फिडेंस दिखाओ, कॉन्फिडेंस दिखाओ थोड़ा सा। हाँ मैत्री, आवाज नहीं आई तेरी? Yes, sir. ओके, अंतरिक्ष, सात्विक, आशी, कंफर्म करो। सर हो जाएगा। यस ओके, सर, क्लियर हो या जाएगा। रवि, Yes. रवि कुछ कॉन्फिडेंस आया? रवि, सार्थक, यस सर, थोड़ा भी Yes, sir. कार्तिक के प्रथम, चलो इस बार देखता हूँ फर्स्ट कौन कर रहा है। लेट मी सी हु इज द फर्स्ट गाय हु इज कंप्लीटिंग इट, लेट्स सी। ऑलराइट, किसी को मेरी हेल्प की चाहिए तो मेरे को लिख देना, मैं चुपके से अलग सर से क्वेश्चन आपको। नंबर 3 ना? क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हेल्प चाहिए मेरी, मेरे को बता देना, मैं अलग से हिंट भेज दूंगा। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। एक हिंट शुरू में दे देता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x, 1 kg एप्पल इज ग्रेप्स इज y। बस इक्वेशन बना लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, सेवंथ वाले क्वेश्चन है ये, यहां सिर्फ ग्राफ एक्स्ट्रा डाल दिया हम लोगों ने।
प्रथम मेरी तरफ से तो कोई कंफ्यूजन था नहीं क्लास का यार आज टाइमिंग का। सर भेज दिया मैंने। सर वो कभी होता नहीं है कि सोते सोते सर लगता है कि सर मैं सर जब मेरी लास्ट टाइम आँख खुली टाइम 2:34 हो रहा था सर, फिर मैं सोया तो सर 4:30 हो रहा है सर, टाइम ट्रैवल तो करके। तुमने रात को यूरो कप देखा होगा ना फाइनल। नहीं सर, वो सर टाइम ट्रैवल कर गया मैं। अंतरिक्ष ने तो यूरो कप देखा, रात को 3:30 बजे सोया है, फिर भी सुबह से उठा हुआ है। थोड़ा सोने पे कंट्रोल करो यार। सर एग्जाम। हाँ चल 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 जल्दी दिखाओ मेरे को। ओके जिसका हो गया भेज दो भैया, भेज दो मेरे को, ग्रुप में डाल दो फटाफट, सुपर ग्रुप में। आई होप एवरीवन इज देयर इन सुपर ग्रुप। कार्तिक सर आपका भी डाल रखा है मैंने सुपर ग्रुप। हाँ सर हाँ जी। सर मुझे इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। 2x plus y is equal to 160 and 4x plus 2y is equal to 300. हाँ हाँ तो ठीक एलिमिनेशन है करने ठीक पे है ठीक सर है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके कोई बात नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम। I'll with the help of this I'll just also solve you, tell you how to get that distinction वाला जो यस मैटर था ना जस्ट टू वेरीफाई सर, मैंने इसे 2 कॉमन बाहर लिया तो 2x plus y is equal to 150 आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ये कभी भी मिलेंगी नहीं आपस में, ये पैरेलल लाइंस है। तो सर पैरेलल है। मैं बताऊंगा ना, सर अभी हमें दिखाऊंगा। सिर्फ आई विल शो यू, आई विल शो यू बाय सर डूइंग। हमें सिर्फ इक्वेशन भेजनी है। हाँ इक्वेशन और उनका सॉल्यूशन। ओके गाइस, इससे पहले कि तुम लोग कंफ्यूज हो और घबराओ, वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पहले सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ करके दिखा रहा हूँ उसके अंदर। Okay. So, question number 3. Sir, done. Okay. Send it to me. Super group में डालो. Let cost of 1 kg apple है, orange क्या है? Apple. Apples is equal to rupees X and cost of 1 kg grapes is equal to rupees Y. Therefore, 2x plus y is equal to 160, equation 1, and 4x plus 2y is equal to 300. आप आगे इक्वेशन करने की कोशिश कर रहोगे, लेकिन अब से ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दे दें आपको और आप अपना टाइम वेस्ट करो। उससे पहले ही एक छोटा सा काम कर लेते हैं, अपन इनको कंपैरिजन कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूंगा ये हो जाएगी 2x plus y minus 160 is equal to 0, 4x plus 2y minus 300 is equal to 0. रवि, so far so good? इक्वेशन वही है, मैंने चेंज नहीं करी अभी। Yes, sir. Okay, now compare with standard form. Okay, so a1 is equal to 2, a2 is equal to 4, b1 is equal to 1, b2 is equal to 2, c1 is equal to minus 160, c2 is equal to minus 300. सार्थक कोई डाउट तो नहीं है? कार्तिक के डाउट तो नहीं है ये वाला पार्ट में? सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ किया, अब कर ही नहीं रहे अभी तो मैं चेक कर रहा हूँ कि किस तरह की इक्वेशन आ रही है, इसके रूट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। बट ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे हमने a1 कहां से आया, a2 कहां से आया, b1 कहां से आया, b2 कहां से आया, c1 कहां से आया, c2। ठीक है, कार्तिकेय मिश्रा, राजवर्धन, सार्थक, मैत्री, भव्या, कंफर्म करो यार। यस सर। मैत्री, भव्या सर इससे उस मेथड से तो पुराना ही है यार, बट मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी ना कि कई बार चेक करना जरूरी हो जाता है। अब देखो यहाँ देख लेते हैं पहले। देखो दोस्तों, a1 अपॉन a2 कितना है? 2/4। b1 अपॉन b2 कितना है? 1/2। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है। क्यों? ये क्या है? 1/2 है।
तो एक्चुअली a1 अपॉन a2 इक्वल है। तो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होते तो डिस्टिंक्ट अपने को वैल्यूज मिलती, दोनों की डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिला था। अब डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, या तो सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं ही मिलेगा। अगर ये इक्वल हो जाएगा C1 C2 के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यानी कि तब क्या होएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ये मिलेंगे। लेकिन अगर ये C1 अपॉन C2 नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन है। याद है सबको ये बात? सातवीं की बात याद है? यस सर। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1, यहां तो यही हो रहा है। इफ यू सी दिस, negative cancels out negative, 0 cancels out 0, and then it is 8 upon 15. It should have been 1 upon 2, but it is not 1 upon 2, it is 8 upon 15. So it is not equal to. So this equation has no solution. Now, Achintya, what you said has been validated. Has been validated. Yeah. Somebody is saying something. Sir, I have also sent the solutions to the equation in the chat box. हाँ, you can send it, but otherwise मेरी तो ये राय रहेगी, you become so good in this, so good in this. एक सेकंड लगता है, टक टक एक यहाँ पे you can do this like this. देख मैं डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे, देख 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 2 upon 4, 1 upon 2, 160 upon 300. अच्छा 1 upon 2 ये तो इक्वल है यार, ये इक्वल नहीं है, नो सोल्यूशन। 30 सेकंड्स में यू कैन डू दिस, 30 सेकंड में यू कैन डू दिस चेकिंग कि साला सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बेवकूफ बना रहा हमारा। या गाइस, एनी डाउट्स बिफोर वी गो अहेड? No sir. या प्रथम, अंतरिक्ष, कोई डाउट भाई किसी को? आगे चलें क्या? यस सर, आगे नो डाउट। ओके राइट, मेरे को 2 लोगों से कंफर्मेशन मिलेगी, 3 लोगों से। रवि आगे इस चले? वाले का कर दिया, क्लियर है। हाँ रवि चले, आगे चले। यस सर। भव्या, भव्या सर मैंने सब्स्टिट्यूशन से करा तो इसमें y इक्वल्स टू 160 आ रहा है। नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूशन करके दिखा दूंगा तब भी, लेकिन वो गलत है तेरी। तू मेरे को करके भेज दे, आई विल टेल यू वेयर इज द मिस्टेक। अगले क्वेश्चन जब तुम कर रहे हो तब मैं मिस्टेक बता दूंगा, ठीक है कार्तिक? यस सर। सेंड इट टू मी। हाँ ओके, भव्या से नहीं आया कंफर्मेशन। भव्या अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हम लोग? यस सर। ओके मैत्री, कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. ऑल राइट गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब लोग थोड़ा सा मेरे को लग रहा है तुम लोग को आ रहा है फटाफट समझ में, प्लीज लेट्स स्पीड अप अ लिटिल बिट। या आई एम प्रेजेंटिंग। Okay, do this question. Yes and yes. लीनियर इक्वेशंस है, सॉल्यूशन ग्राफिकली तो यार घर पे कर लेना, एक बार इक्वेशन बना के वो बॉक्स बना के कर लेना, यहाँ टाइम नहीं लगाएंगे। नहीं होता तुमसे किसी दिन तो मुझे बताना कि सर ये ग्राफिकली नहीं हो रहा कोई क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन इट। राइट नाउ जस्ट लेट अस डू दिस बाय algebraic method. Firstly, let us see if you can make the equation. मेरे को पहले इक्वेशन चाहिए। चैट बॉक्स में ना मेरे को इक्वेशन दे दो, पहले मेरे को इक्वेशन दे दो चैट बॉक्स में। हाँ, जिसकी बनती रहे, दोनों इक्वेशन का साथ डालना, लेकिन नॉट सेपरेटली, टुगेदर। हाँ विराज, नो इश्यूज, you must just stay with us, that's all. Otherwise video will be there, then you can go through the video, it will be easy for you. विराज, गौतम। सर मैंने भेज दिया। ओके कार्तिक, इसके अंदर इक्वेशन लिख दे चैट बॉक्स में, क्या इक्वेशन बनी है आपकी? आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in mathematics quiz. Number of girls is 4 more than number of boys. Find the number of boys who took part in the quiz. हाँ, just write the equation guys. I want to see how fast you can make the equations. But there have to be 2 equations, Rajvardhan. We need 2 equations, Rajvardhan. Or if you want to make one, then there will be only one Yes, sir. variable.
देन देयर विल बी ओनली वन वेरिएबल। दोनों तरीके बन सकते हैं। Yes, sir. दोस्तों या तो दो इक्वेशन बनेगी तो दो वेरिएबल होंगे, एक ही इक्वेशन भी पॉसिबल है बनाना, तो लेकिन वेरिएबल एक ही होगा सर। कार्तिक, वही मैं बात कह रहा हूं दोस्त, अगर दो वेरिएबल लिए हैं तो दो इक्वेशन बनेगी, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं आता। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये लाइट ने इतना परेशान कर रखा है यार। सर एक वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं बन सकती? नहीं हो सकता, एक दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, दो इक्वेशन चाहिए, ये रूल है। सर जो मैंने भेजा कि वो गलत है अभी, मतलब सात्विक जो equation। तुमने भेजा है वो मैं बता देता हूँ। आपने जो सात्विक भेजा है ना, एक मिनट मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, हाँ गलत है तुम्हारा, दोनों गलत है। कार्तिक सुरेश का भी गलत है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट इक्वेशन, लेट अस सी। प्रथम, अंतरिक्ष, राजवर्धन, कार्तिकेन मिश्रा, भैया जी करो 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 जल्दी, कुछ तो डालो इक्वेशन में। जल्दी करें जल्दी करें, इस वाली इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन से करके यस सर, दिखाऊंगा। आगे ओके, सार्थक कैन यू रीड द क्वेश्चन? सार्थक, ओके भव्य आप पढ़ दो। Yes, sir. So question number 1, huh? या Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically. 10 students of class 10 took part in a बस 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 mathematic. बस बस बस, टोटल स्टूडेंट 10 है, यानी बॉयज और गर्ल्स को मिला लो तो 10 है टोटल मिला के। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन। ओके नेक्स्ट। 10 students of class 10 took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ओके कह रहा है कि गर्ल्स की जो नंबर है वो मोर है, तो y बड़ा है, और नंबर ऑफ गर्ल्स में से अगर नंबर ऑफ बॉयज निकाल दोगे आप तो 4 बचेंगे आपके पास, क्योंकि गर्ल्स 4 मोर है। भाई ये तो स्टेट वे सिचुएशन बन गई है किसकी? एलिमिनेशन की। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 3। पता नहीं वो लोगों ने सर शेयरिंग स्टॉप। मल्टीप्लाई क्यों कर दिया लोगों ने। शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। लोगों ने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया ये नहीं समझ आया यार, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। आप ऐड कर दो दोनों को, तो ये देखो माइनस का एक्स है प्लस का एक्स है, कट गए, ये बचा 2y इज इक्वल टू 14, so y is equal to 7. Let's find out x. So y minus x is equal to 4, तो 7 minus x is equal to 4, x उधर चला गया, x is equal to 7 minus 4, x is equal to 3. So x is equal to 3, y is equal to 7. This is our answer. एलिमिनेशन मेथड में सबसे ज्यादा फायदा ये है कि खट से हो जाता है, ज्यादा वो टाइम लगानी जरूरत नहीं पड़े। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, उसको ऐसे करो वैसे करो, वैल्यू निकालो, इधर क्या अपन सीधे मारते हैं। अभी लोगों ने पता नहीं 4y कर दिया, किसी ने 2y कर दिया, इट वाज सो इजी। अच्छा इसी इक्वेशन को सिंगल इक्वेशन में देखो, अब सिंगल वेरिएबल में भी ये इक्वेशन करके दिखाता हूं। नाउ दिस इज मेथड 1, मेथड 1, लेट्स सी मेथड 2 आल्सो। मेथड 2, let number of girls is equal to x,
सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, भाई टोटल 10 है, टोटल 10 है अंतरिक्ष, तो बॉयज कितने बचेंगे 10 माइनस एक्स, यस सर नो? यस सर, यस सर। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है, यानी गर्ल्स में से अगर मैं बॉयज का नंबर माइनस कर दूं, पहले मैं वैसे दिखाता हूं, गर्ल्स माइनस बॉय, या और आई कैन से गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज प्लस 7, बॉयज प्लस 4, गर्ल्स ज्यादा है 4, सो गर्ल्स एक्स इज इक्वल टू, बॉयज कितने हैं 10 माइनस एक्स प्लस 4, एक्स इधर आ जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू 14, so x is equal to 7, girls are 7 and boy कितने 10 minus 7 is equal to 3, this is correct, this is correct. So अगर ये इक्वेशन मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये सिंगल वेरिएबल की एक इक्वेशन बन जाएगी और हमारा काम हो जाएगा. I hope this point is now clear to everyone that if you have two variables you will need two equations to solve to get the solution. बहुत उल्टा पुल्टा आंसर लिख रखे हैं लोगों ने, पता नहीं कैसे कैसे. चलो मैं देख भी नहीं रहा हूँ उसको. Right, I'm sharing again, guys. Come on, यार, get your act together now. Everybody, बहुत हो गया, बहुत प्रैक्टिस करा दिया यार, अब तो खुद से करो. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2. सर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मैंने पार्ट 1 के साथ ही चैट बॉक्स में भेजा. ओके ठीक है, मैं देख लो. आपने सॉल्व भी कर दिया क्या? यस सर. ठीक है, सॉल्यूशन भी भेज दिया आपने मेरे को, सॉल्यूशन करके भेज दो ना एलिमिनेशन मेथड से. सर भेजा नहीं है, लिख के भेज देता हूँ. हाँ, टेक ए पिक एंड सेंड इट इन सुपरस्टार, सुपरस्टार, देन Okay, सुपरस्टार. कार्तिक, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा जो तुमने भेजा है उसका एक ही पेज आया है, पूरा दोनों पेज तो चाहिए भेज दिया तुमको, मैंने. इक्वेशन नहीं मिल रही है. अरे, कार्तिक पूरा भेजना पड़ेगा तब मैं बताऊंगा कहाँ गलती है. यस सर. All right, I'm waiting now from Achintya for the second question. Okay, राजवर्धन, दोनों इक्वेशन साथ भेजा करना. ओके, साथ सर वो भेज एंटर दिए. में ऊपर भेज दीजिए. आगे ध्यान रखना. भाई लोगों, सबकी इक्वेशन तो आ रही हैं, अब इसको सॉल्व करके दिखा दो मेरे को, जल्दी जल्दी जल्दी. मैत्री, आपका सॉल्यूशन नहीं आया अब तक? सॉल्यूशन नहीं मांग रहा हूं, मेरे को इक्वेशन बना के भेज दो सिर्फ. आशी की इक्वेशन आ गई है, ठीक है. देखो किस किस की इक्वेशन नहीं आई मैं देख रहा हूँ. कार्तिक की आ गई, राजवर्धन की आ गई, सात्विक की आई, अंतरिक्ष की आई, अचिंत्य की आई. प्रथम तो अब तक लग रहा है नींद में ही सो रहा है. सार्थक की भी नहीं आई है, रवि की भी नहीं आई, मैत्री की भी नहीं आई. क्या बात है यार, नहीं समझ में आ रहा क्या? होल्ड करें थोड़ी देर के लिए इधर. हाँ जी, हाँ रवि नहीं हो रहा, sir, नहीं I am समझ में आ not रहा. able to click the सर photo कंटिन्यूअसली. because I am in the meeting. So, sir, may I tell you the answers? अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी नहीं. आई लास्ट द आंसर टू बी पोस्टेड इन द ग्रुप, दैट टाइम वी पोस्टेड. लेट मी जस्ट टॉक टू दीस पीपल what if they are facing any problem. Ashi, I think you have written the answer, you have written the equations, please find the solution. कार्तिक ने भी लिख दिया, अंतरिक्ष ने भी लिख दिया, अचिंत्य ने कर दिया. रवि, रवि इक्वेशन लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर थोड़ा सा डाउट हुआ था बट हाँ हो गया. यार एक को x मान ले, एक को y मान ले, बस सिंपल है. यस सर. ओके भव्या, इक्वेशन लिखोगे, बन गई दोनों? यस सर. ठीक है, कार्तिक का हो गया, कार्तिक ने भेज दी, कार्तिकी ने भेज दी. मैत्री, आपकी इक्वेशन बनी कि नहीं? सर मैंने सेंड कर दिया. ओके, सॉल्यूशन निकालो फिर मैत्री. प्रथम, सॉल्यूशन आ गया?
प्रथम सॉल्यूशन आ गया? नो सर अभी नहीं आया। राजवर्धन सॉल्यूशन? Excuse me, sir. हाँ जी मैं No, तेरी sir. बोलो आशी, सॉरी। Sir, I have found the value of x और उसको फिर पुट ओरिजिनल वाली में करना है या फिर जो मल्टीप्लाइड वाली है? एलिमिनेशन मेथड से करो। अच्छा मतलब तुमने x की वैल्यू निकाल ली ऑलरेडी? Yes, sir. फिर तो किसी भी इक्वेशन रख लो जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगता है। इक्वेशन 1 में लिखना है 1 में लिख लो, 2 में रखना है 2 में रख लो। Sir, And find after multiplied one. no, have you multiplied these? एक 7 से मल्टीप्लाइड होगी, एक 5 से मल्टीप्लाई Yes, होगी, sir. है ना? तो उसके बाद उनको माइनस करो ना, सब्ट्रैक्ट करो, स्टेप 2 करो, स्टेप 2। जस्ट डू स्टेप 2। इसमें एक को दूसरी से सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको आपने इक्वल किया टर्म को, उसको हमें एलिमिनेट करना है। So, sir, can I write the answers in the chat box or I'll tell you? अरे रुक जा यार अचिंत्या, रुक जा, मुझे पता तुम्हारे स्कूल में सर वो चैप्टर है कि कर लिया सर भेज नहीं रहा है कोई तो। नहीं, तो वो तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप। यू नो मोर ए चाइल्ड, यू आर ए यंग एडल्ट नाउ। ओके सात्विक, हाँ भैया। सर कर रहा हूँ सर। ओके राइट गाइस, मैं अभी नहीं, अभी वेट करना है 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट दो, मैं क्वेश्चन को लिख लूं बोर्ड पे, उसके बाद लाइन खींचूंगा, तब तुम लोगों ने आंसर भेजना है। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूं, मैं तो छोटा शॉर्टकट कर दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें दिखा दिया डेमो आंसर कैसे लिखने। ओके वेट करना 1 मिनट अचिंत्य। So let pencil, cost of pencil is x and pen is y. So 5x plus 7y is equal to 50. And 7x plus 5y is equal to 46. Equation number 1, equation number 2. Okay, all those people who have got their answer, I am putting a line, after that post your answer. Go. All right. So what I'm मेरी तो पॉलिसी हमेशा रहती है, if I have both the options, I will eliminate x first, y first, y. So this I am multiplying by 5 and this by 7. So I will get with 25x plus 35y is equal to 250 and 49x plus 35y is equal to 7 6 ja 42, carry 4, 7 4 ja 28 and 4 34. Okay, now equation 1 dash, equation 2 dash, equation 2 माइनस इक्वेशन डैश माइनस इक्वेशन, ऊपर वाली को माइनस करूंगा, मेरे पास आगे 24x is equal to 92. So x is equal to 4. अब वैल्यू रखना x की यहाँ पे। So this is 20 plus 4 ठीक है क्या? 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, 46 multiplied by 7 is 322. 322 क्या मैंने क्या मल्टीप्लाई, 7 6 42 कैरी 4 7 4 28, यस ठीक है, थैंक यू। So I have left with 72 here. So x is equal to 3. 3 की वैल्यू रखा भाई इधर, 15 plus 7y is equal to 50. 7y is equal to 35. So y is equal to 5. x is equal to y is equal to 5. बताओ भाई कुछ समस्या थी क्या इसके अंदर, कुछ दिक्कत परेशानी? So one doubt. सर हाँ हाँ भाई कार्तिक बता। Sir, how do we know ये which क्या number तुम्हें we should अचिंत्या? multiply ओ भाई the अचिंत्या, equation with? 1 मिनट, एक अचिंत्या मेरा होल्ड करना, मैं कार्तिक से बात कर रहा हूँ। कार्तिक या गो अहेड। Sir, how do we know which number we should multiply the equation with? दोस्त ऐसा है ना, देख मेरे को इन दोनों में से किसी नंबर को ऐसा करना कि वो इक्वल हो जाए, ताकि जब मैं माइनस करूं
तो वो कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए। मेरी पॉलिसी जनरली ये रहती है कि मैं y को एलिमिनेट करता हूँ। तुम लोग भी अपनी एक आदत बना लो, हैबिट बना लो y को करने की। करने को तो मैं x को भी करूँ y को भी करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। ओके सो मैंने इसको डिसाइड किया कि इसको साले को एलिमिनेट करता हूँ y को। तो 7 को एलिमिनेट करने के लिए 7y को मैं, इधर 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे अपन नहीं निकालते, एलसीएम निकालते हैं दो नंबरों का, एलसीएम निकालते हैं अपन। तो 7 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो पता चल जाएगा 35 आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे 7 से। बाकी की मुझे टेंशन नहीं है, बाकी की चिंता ही नहीं है। जैसे ये 35 होगा ये तो निकल जाएगा इक्वेशन में, पर ये रह जाएगा एक रह जाएगा वेरिएबल, बाहर काम आसानी से हो जाएगा। हाँ, वो चिंता का नहीं मुझे समझ में आ रहा, चिंता कहाँ से, ये कहाँ से दो आंसर आ गए। सॉरी सर, मल्टीप्लिकेशन करना भूल गया, लेकिन सर जब मैंने एलिमिनेट किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 2x minus 2y is equal to 4 आया, 2 कॉमन लेके काटा, तुम्हारा सॉल्यूशन तो कहाँ x है? minus 1। ना Achinta, you have to show me the solution so that I can really rectify your mistake. Otherwise, you will carry that Okay, mistake with you. Okay? Can you show it to me on video? Can you show that on video? मल्टीप्लिकेशन करना भूल गया। Yeah. Just I'm looking at it. Don't let it shake. Okay. Wait. Okay. दोस्त, तुमने मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं है। सर वही 2x तो minus 2y कर मल्टीप्लाई दिया। करना भूल गया। नहीं, eliminate कहाँ हुआ? You are not eliminated. Where is the elimination? This is totally wrong method. You are not understood, Achinta. हटा ले, down. देखो दोस्त, इसको हमें मल्टीप्लाई करके ऐसे रखना है ताकि एक वेरिएबल को हम निकाल सकें। तुम्हारे तो दोनों वेरिएबल बैठे हुए तेरी भाई। Achintya, look at this video Sorry, once sir. again. Try to understand how I have gone about. There so many equations we have done. अभी एक्चुअली तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, छोटी क्लास के बच्चों के साथ होता है, वो उनको टेंशन नहीं है। प्रथम के साथ होता है बहुत बार पहले से, उन्हें टेंशन नहीं है आंसर सही आए कि गलत आए, सबसे पहला आंसर मेरा आना चाहिए, वो नहीं चाहिए भैया। अभी अब तुम बड़े हो गए यार चिंतन, ठीक है? डोंट डू दैट। सो यू हैव टू सी, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, तब एक बराबर आया तो एलिमिनेट किया था, ऐसा आएगा वो तो। आपका मेथड बिल्कुल गलत है। सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन, गो डू दिस क्वेश्चंस। आई विल कंटिन्यू दिस टुमारो। आई कैन सी तुम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, तो कार्तिक की बातें से मेरे को लगा जैसे तुम्हारी बातों से। बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, बट आई कैन सी सम पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम। प्रथम का सही है, सात्विक का सही है, आशीष सही, करेक्ट। अंतरिक्ष ने तो आंसर ही नहीं डाला। ओके, right guys, it's time to say goodbye. We'll continue this chapter, same chapter tomorrow, and maybe 2-3 days we should finish this off. But do take interest, do watch the video, do go through the notes, do your questions. थोड़ा seriousness दिखानी पड़ेगी। चलो, bye for now. See you. Bye आशीष, सात्विक, अंतरिक्ष, राजवर्धन, भव्या, प्रथम, कार्तिकेय। बाय मैत्री, बाय। सर वेडनेसडे से लेके फ्राइडे के बीच में ट्रायंगल्स कर सकते हैं, क्योंकि मंडे को पेपर होगा और सैटरडे संडे तो छुट्टी हो जाएगी। तो 19th को पेपर है ना, तो वेडनेसडे से ये सर वेडनेसडे से फ्राइडे या थर्सडे से फ्राइडे 2 दिन दे सकते हैं। ठीक है, ओके सर। 3 दिन करेंगे, 3 दिन, ठीक है। ओके, याद दिला देना। ओके, चल बाय।